Hi everyone, good morning. Well, this is Sarfraz Khan, and once again I welcome you all in this YouTube channel that is Crow Skills Academy. So once again I've come with a new video session. In this video session we will be learning about top 10 most one word substitution. यानी आज की इस वीडियो सेशन में या यूं कह ले मैं फिर से एक नए वीडियो सेशन के साथ आया हूं जिसमें हम लोग सीखेंगे 10 वे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस which are really very important. Why? Because these all words or these 10 words have come in the examinations like competitive examinations these have come in the examination like many competitive examinations like SSCs, then SSC, MTS and DEO. There are so many examinations. In these examinations these words have come, some words have come once, some words have come in the examinations twice or thrice too. So now on the basis of these I will be requesting you to watch the whole video till the end, and if you are new at this channel please do subscribe it. Instead of wasting time, if you are interested, continue watching. So welcome back once again in this YouTube channel that is Crow Skills Academy. So as I told you earlier that in this video session we will be learning about top 10 most one word substitutions which are really very important. Why? Because that these have come in the different examinations like SSCs, DEO or SSCs, MTS, and number of examinations that these words have come, or we have got to see these words in the examination, in competitive examinations. So what are these 10 words? So these are ransom, second one is what? Amphibians, third one is what? Disarranged, fourth is prediction, fifth is embezzlement, sixth is introspection, seventh is anarchy, eighth is fluke, and the ninth one is what? Desecration, and the final, the today is in the last video, in this video session we'll study the last one word substitution is what? Ambidextrous, right? So we'll study all these 10 words. So the first one that we will start is with the word ransom. So what I said, so this is the first one word substitution that we are having in the class today. आज की इस वीडियो सेशन में सबसे पहला हमारा वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? रैंसम. इसका क्या मतलब होता है? इट्स मीनिंग इज फिरौती. इसका क्या मतलब होता है? फिरौती. आप समझ गए होंगे नेम इटसेल्फ. रैंसम का जो मीनिंग है, द मीनिंग इटसेल्फ हैज, आई थिंक दैट इट might have made you understand that what is actually फिरौती. फिरौती होता क्या है? फिरौती क्या है? It is the amount that is demanded by the kidnappers. ये वो अमाउंट होता है जो किडनैपर्स के ज़रिए किडनैपर्स इस अमाउंट को मांगते हैं जिसे भी ये किडनैप करते हैं उसके छुड़ाने के लिए, या फिर उसे अगर आप चाहते हैं दैट इफ़ somebody has been kidnapped or kidnappers have kidnapped somebody or someone, so to release or to remove or to release him, if he asks some amount, so that is known as ransom. यानी एक और तरीके से ये भी कह सकते हैं कि amount of money paid to free a captive. यानी वो अमाउंट, वो पैसे देना, वो पैसे मांगते हैं वे लोग, ये वैसे पैसे जो कि आप अपने कैप्टिव, जो भी जिसे वो किडनैपर्स पकड़ लेते हैं या कुछ भी किडनैपर्स पकड़ लेते हैं, तो उन्हें छुड़ाने के लिए जो अमाउंट मांगी जाती है, जो रकम मांगी जाती है, उसी को कहते हैं हम लोग फिरौती. Well, this word has come in examination like SSC, MTS in 2013. So obviously we can say that this word is really very important. Why? Because that we have got to see here that it has come in examination SSC, MTS 2013. So क्या है इसका मतलब? क्या है? Amount of money demanded by kidnappers. वो रकम जो किडनैपर्स के ज़रिए मांगी जाती है जिसे वो किडनैप किए हैं, और उसे रिलीज़ करने के लिए अगर आप जाहिर सी बात है कि हर कोई भी बंदा या कोई भी पर्सन किडनैप्ड होता है तो वो जो पर्सन, जो विक्टिम्स होता है, जो मतलब इनोसेंट पर्सन जो कि किडनैप्ड हो जाता है, तो उसे रिलीज़ करने के लिए जो अमाउंट मांगी जाती है, जो रकम मांगी जाती है, उसे हम लोग कहते हैं रैंसम. आप इसे अगर सेंटेंस में समझना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं दैट ही हैज़ asked for ransom. उसने क्या मांगा है? फिरौती मांगा है. और इस तरह से नंबर ऑफ सेंटेंसेस दैट यू कैन मेक
फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इन अ पैसेज और इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आप देखिएगा पैसेज में कुछ ऐसे वर्ड रहेंगे जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है और उसी में से क्या होता है कि एक वर्ड को वो देते हैं जिससे हम लोग को समझना पड़ता है कि एक वर्ड दे दिए कि आपको ये ढूंढना है कि इसमें फिरौती का क्या मतलब होता है या फिर फिरौती किससे रिलेट करता है, कौन सा वर्ड है इसमें। तो ऑब्वियसली अगर कहीं भी अगर आपको देखने को मिले तो आपको वहां पर क्या ठीक करना पड़ेगा या क्या ठीक करना होगा, रैंसम। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखें, ताकि मैं उम्मीद करूंगा कि अगले वीडियो में अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से इसे क्लियर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो चुका होगा। The next important word here we have in today's video session is what? Amphibians. So what I said, अगला हमारा important word क्या है, यानी अगला हमारा one word substitution word क्या है? Amphibians. Its Hindi meaning is what? जल स्थलचर या फिर इसे उभयचर भी कहते हैं। Well, this is its Hindi, जल स्थलचर, right? So amphibians is what? It is amphibians are what? So what are amphibians? Amphibians are those animals which live on land and water as well. यानी वो जानवर जो कि ज़मीन पर और पानी दोनों में जीवित रहते हैं या दोनों में जीते या फिर दोनों में जीवित रहते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि जो दोनों में रहते हैं, पानी में भी और ज़मीन पर भी। This word has come in the examination like SSC stenographers in 1991. So you can even say that this word is also an important. आप ये भी कह सकते हैं कि ये भी word क्या है, important है। The reason behind is what? Not only that there is a reason. The reason that we have got to see here that this word has come in the examination, that is what? SSC or stenographer in 1991. So what is the meaning of amphibians? Amphibians ये वो जानवर होते हैं जो लैंड पर और वाटर पर क्या रहते हैं, जीवित होते हैं या जीवित रहते हैं। तो आप ऐसे कई सारे हाथी एक ऐसा जानवर है जो कि आप ज़मीन और पानी में नहीं रह सकता है, यानी ऐसा जानवर जो पानी में भी लंबे समय तक रह सकता हो और ज़मीन में भी रह सकता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे आपके जहन में भी को एक वो जानवर का नाम आपको जहन में आ गया होगा। फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। Frog is an amphibian. Frog क्या है? मेढक एक कैसा जानवर या कैसा रेप्टाइल से कह सकते हैं इसे। ये दिस इज अ रेप्टाइल। आप इसे कह सकते हैं ये वो जानवर है जो कि ज़मीन पर और पानी में भी। स्नेक इज ऑल्सो एम्फीबियन। Crocodile is also an amphibian. Why? Because these not only live on land but also these animals live even in water too. तो इसलिए एम्फीबियंस का क्या मतलब होता है, वैसे जानवर जो कि पानी और ज़मीन दोनों में जीवित रह सकते हो, राइट। तो ऐसे वर्ड्स को एम्फीबियंस that we get to see most of the time that we get to see in science subject. So now that we have, I have even illustrated, I have even explained. So hopefully that you might have understood or you must have understood about amphibians. तो उम्मीद है कि आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का डाउट्स रहा तो फिर से मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप टाइप करें। दैट होपफुली आई मे ट्राई इन द नेक्स्ट वीडियो टू क्लियर योर डाउट्स। और अगर आपको और कुछ भी पढ़ना हो या आपको लग रहा हो कि मुझे इस पर कुछ क्लैरिटी चाहिए, कुछ डाउट्स क्लियर कर दीजिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाकर ज़रूर दे दूँगा आपके सामने। तो आपको ये ये वर्ड आपको शायद उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो सेशन का हमारा तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, डिसअरेंज्ड। मैंने क्या कहा, आज का हमारा तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, यानी हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, डिसअरेंज्ड। इसका क्या मतलब होता है, अव्यवस्थित। हिंदी मतलब क्या होता है इसका, अव्यवस्थित, तीतर बीतर या फिर अस्त व्यवस्थ, राइट। सो दीज आर द हिंदी मीनिंग्स ऑफ डिसअरेंज्ड। इसका क्या मतलब होता है, अव्यवस्थित, तीतर बीतर। यानी आपको नाम से मतलब पता चल गया होगा, नेम इटसेल्फ और द वर्ड इटसेल्फ हैज गिवन यू सम मीनिंग दैट डिसअरेंज्ड, यानी जो प्रॉपर अरेंज्ड नहीं हो, यानी बिखरा हुआ, इधर उधर, तीतर बीतर। तो ऐसे वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, डिसअरेंज्ड। यानी इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ऑल इन अ मेस। यानी ऐसा सामान या फिर ऐसा चीज़ जो पूरा बिखरा हुआ, घर पे पूरा सब कुछ मान के चलिए कि बिखरा हुआ है, तो वो क्या है,
जो मैंने कपड़े को सही से रखना चाहिए मुझको, इट शुड बी देयर इन द कपबोर्ड एंड cupboard, or I think that the books should be there on the proper shelves. So these are not there, or the books are not there on the proper shelves. So those are what? Disarranged. इधर उधर बिखरा हुआ है, तीतर बितर है, अस्त व्यस्त है और अव्यवस्थित है, तो ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं हम लोग? डिसअरेंज्ड. तो आप एग्जाम्पल्स में अगर आपको चाहिए हो, अगर एग्जाम्पल इसके लिए अगर हो, तो आई हैव, आप ऐसा एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. I have found my books or clothes disarranged. आप ऐसा लिख सकते हैं that I have found my books or clothes disarranged. यानी मैंने अपना किताब या फिर कपड़े कैसे पाए हैं? डिसअरेंज्ड, यानी अव्यवस्थित या तीतर बीतर, ऐसा इधर उधर फेंका हुआ, गिरा हुआ. तो ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं हम लोग? डिसअरेंज्ड. उम्मीद है कि आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा. द नेक्स्ट वर्ड हियर वी हैव इन टुडेज वीडियो सेशन इज व्हाट? प्रेडिक्शन और प्रोग्नोस्टिकेशन. सो व्हाट आई सेड, द नेक्स्ट वर्ड हियर वी हैव इज व्हाट? प्रेडिक्शन और प्रोग्नोस्टिकेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? The Hindi meaning of this one is what? पूर्व ज्ञापन और भविष्यवाणी. पूर्व ज्ञापन या फिर इसे क्या कहेंगे? भविष्यवाणी. यानी प्रेडिक्शन या फिर प्रोग्नोस्टिकेशन का क्या मतलब होता है? पूर्व ज्ञापन या फिर भविष्यवाणी. यानी पहले से ही कुछ ज्ञान अर्जित, या फिर हम किसी चीज़ को देख करके, अभी आप फिलहाल आप देख रहे होंगे कि IPL मैचेस चल रहा है, हम लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं. Sometimes that we watch it, like when we watch matches, then we predict that this team will win, but it happens or it doesn't happen, that comes to know, or like we come to know at the end of the match, or once the match is over, then we get to know, or we come to know that which team has won, or which team has lost, or which team was defeated, or which team has won, right? तो कहने का मतलब क्या है? अभी हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फाइनल में गुजरात टाइटंस पहुंचा है, और उसके साथ ये टीम आ जाए, RCB आ जाए, या फिर कोई और टीम आ जाए. तो सब लोगों की अलग अलग प्रेडिक्शन होती है, भविष्यवाणी होती है, राइट? कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी के फ्यूचर भी क्या कर देते हैं? प्रेडिक्शन कर देते हैं कि तुम्हारा भविष्य ये होगा, उसका भविष्य ये होगा. तो भविष्यवाणी का इंग्लिश क्या होता है? प्रेडिक्शन या फिर प्रोग्नोस्टिकेशंस, राइट? इसे अगर इंग्लिश में समझना हो तो क्या समझेंगे? एक्ट ऑफ फोरकास्टिंग बाय एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशंस. यानी मौजूदा हालात को देख करके, प्रेजेंट कंडीशंस को देख करके हम अगर उस पर क्या करते हैं? समझने की कोशिश करते हैं कि इसका भविष्य क्या होगा, या में इसका भविष्यवाणी हम निकाल पाते हैं उसके प्रेजेंट कंडीशंस को देख करके. हम लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा, जैसे किसी लड़का को देख करके, कोई लड़की को देख करके, या किसी को भी देख करके, कोई अगर दिन भर लगा हुआ हो मोबाइल में, या अलग अलग, कोई पढ़ रहा है दिल लगा करके, कोई अच्छे काम कर रहे हैं दिल लगा करके, तो हम लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा. फिर हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि इसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा. तो यही है प्रेडिक्शन, राइट? अगर इसे एग्जाम्पल्स में समझेंगे तो इसे क्या करेंगे हम लोग? आई हैव प्रेडिक्टेड, मैंने ये भविष्यवाणी किया है, गुजरात टाइटंस, that is GT, will win IPL 2022. I mean Tata IPL 2022. तो मैंने ये क्या भविष्यवाणी किया है? Just I have predicted. This is what a sentence. Don't take it seriously. This is just a sentence. तो मैंने ये predict किया है कि इस बार इस टाटा IPL 2022 में गुजरात टाइटंस जीतेगा IPL ट्रॉफी. तो ये मैंने क्या किया है? प्रेडिक्शन. ये ऐसा नहीं है कि इससे कुछ किसी चीज़ से इसका कोई लेना देना, जस्ट मैंने भविष्यवाणी किया है. तो ये है प्रेडिक्शन या फिर प्रोग्नोस्टिकेशन, जिसका मतलब क्या होता है? पूर्व ज्ञापन या फिर भविष्यवाणी.
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वर्ड यानी प्रेडिक्शन या फिर प्रोग्नोस्टिकेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो सेशन का हमारा 5वां वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? एम्बेजलमेंट। मैंने क्या कहा? आज के इस वीडियो सेशन का या यूं कह ले हमारा 5वां वर्ड क्या है? एम्बेजलमेंट। वेल इट्स हिंदी मीनिंग इज व्हाट? गबन या फिर घपला। मैंने क्या कहा? एम्बेजलमेंट का क्या मतलब होता है? गबन या घपला। Well, this word is really very important. Why? Because that this word has come in the examination SSC DO or LDC in 2015. So that's how we can say that this word is really very important. See, these words that you can use in your spoken as well as that in your writing or in your written. You can use it. Fine. तो एम्बेजलमेंट का क्या मतलब होता है? गबन या फिर घपला। तो किस चीज का गबन या घपला? ऑब्वियसली पैसों का गबन या पैसों का घपला। सपोज कीजिए कि मैंने किसी को कुछ अमाउंट दिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैंने किसी को दिया जिसमें से उसे 100% लगाना था या फिर 90% भी लगाना था, लेकिन उसने लगाया सिर्फ 25% या 30 या 40% लगाया, राइट? इसका मतलब रेस्ट ऑफ द अमाउंट दैट ही हैज डन embezzlement with my amount, with my money. इसका मतलब क्या है कि उसने मेरे बाकी रेस्ट जो पैसे का क्या किया? गबन किया या फिर घपला किया। यही है embezzlement. Well, अगर आप इसे इंग्लिश में समझना चाहें, if you want to understand its English, then we can say in this way that act of misappropriation of money. What I said? Act of misappropriation of मनी। इसका मतलब क्या होता है? गबन या फिर घपला, राइट? अगर इसे आप सेंटेंस में समझना चाहें तो इसके लिए सेंटेंस क्या होगा? दैट somebody has done the embezzlement with my money, or somebody has done embezzlement of my money. किसी ने मेरे पैसों का घपला किया है या फिर मेरे पैसों के साथ घपला किया है। तो ये है एम्बेजलमेंट, जो कि ये वर्ड जो है SSC DO LDC 2015 में ये वर्ड एग्जामिनेशन में आया है, इसलिए ये वर्ड रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि एम्बेजलमेंट यानी गबन या फिर घपला आपको ये वर्ड क्लियर हो चुका होगा। The sixth word here we have in today's video session is what? Introspection. So what I said, the sixth word here we have is what? Introspection. So what is its Hindi meaning? इसका हिंदी मतलब क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब होता है? अंत दर्शन या फिर यूं कह ले अंत निरीक्षण, यानी ऐसा बंदा या फिर ऐसी प्रोसेस, और यू कैन से दैट एक्ट और प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनवर्ड। खुद के अंदर झांकना, खुद के अंदर झांकने का प्रोसेस ही कहलाता है इंट्रोस्पेक्शन या फिर अंत दर्शन या फिर अंत निरीक्षण। सिर्फ झांकने तक तो नहीं होना चाहिए, उस पर क्या होना चाहिए? अपने अंदर झांक करके जांच कर लेना, एग्जामिनेशन कर लेना ही कहलाता है इंट्रोस्पेक्शन। या फिर एक चीज और कह सकते हैं, इट्स अनदर इंग्लिश इज व्हाट? एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट और फीलिंग्स। खुद की फीलिंग्स या खुद की जो सोच की जो आप एग्जामिनेशन होती है, इसके बारे में जो जांच होती है, उसी को कहते हैं हम लोग इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब होता है? अंत दर्शन या फिर अंत निरीक्षण। जहां तक ये मेरा मानना है, as far as I can say that, as far as it is concerned, or as far as I know that, even that I believe that everybody should do the process of introspection, क्योंकि ये ज़रूरी है, इंसान को खुद का अंत दर्शन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। And first of all, that this word is really I can say that once again that this is again the most important word. Why? Because that this word has come in the examination SSC SI of Police in 1993, DEO in 2010, and even in LDC in 2010.
So this word is really very important. Maybe that it may come in the next examination, it may come in your examinations too. इसलिए इस वर्ड का आपको पता होना जरूरी है. तो इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब होता है? अंत दर्शन या फिर अंत निरीक्षण. अगर इसे एग्जाम्पल्स में समझना चाहें तो मैं इस बात को मानता हूं. He believes in introspections. He believes in introspections. या फिर I believe in introspection. मैं किस पर विश्वास करता हूं? अंत दर्शन या फिर अंत निरीक्षण पर विश्वास करता हूं. ये होना चाहिए. अपने अंदर का सोच, अपने फीलिंग्स की आपको परख यानी जांच कर लेनी चाहिए या जांच करना चाहिए. ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इंट्रोस्पेक्शंस. उम्मीद है आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा. ये हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, लेकिन आप इसे अपने रिटन सेक्शन में या फिर अपने स्पोकन सेक्शन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. उम्मीद है आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा. सो फार वी हैव लर्न्ड 6th important word or 6th one word substitution words like ransom, amphibians, disarranged, prediction, embezzlement, introspection. So now here we have the 7th word in this video session is what? Anarchy. So what I said, हमारा ये इस video session का 7वां word क्या है? Anarchy. Well, its Hindi meaning is what? अराजकता या फिर अव्यवस्था, right? Anarchy का क्या मतलब होता है? अराजकता. Well, this word has come in examination like SSC, MTS in 2010 and 11 as well, and in TA 2011. So obviously we can say that this word is really very important. और अभी MTS एग्जामिनेशन नज़दीक में भी है, तो इस वर्ड का ये जितने भी सारे वर्ड्स आप सीख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, इसको ज़रूर अच्छे से अच्छे समझ लें. अनार्की का क्या मतलब होता है? अराजकता या फिर अव्यवस्था. Well, if you want to understand in English, so absence of government in a country, यानी ऐसा देश जिसमें सरकार की अनुपस्थिति जाहिर दिखता हो या फिर दिखता हो, ऐसा कंट्री जिसमें सरकार नहीं हो, सरकार की गैर मौजूदगी दिखा रहा हो या अनुपस्थिति दिखा रहा हो, तो वैसा कंट्री क्या कहलाएगा या वैसा सिचुएशन या फिर वैसा कंट्री क्या कहलाएगा? अनार्की. यानी कि अनार्की का क्या मतलब होता है? अराजकता या फिर अव्यवस्था. यानी वैसा कंट्री where there is an absence of and there is an absence of government, जहाँ पर सरकार की यानी कि गवर्नमेंट की क्या है? अनुपस्थिति दिख रहा है. तो उम्मीद है आपको ये वर्ड, जहाँ तक मैं कोशिश किया हूँ आपको समझाने के लिए या समझाने की कोशिश किया हूँ, आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये वर्ड जो है SSC MTS 2010 एंड 11 एज वेल इसमें आया भी है, इसलिए इस वर्ड को आप अच्छे से समझ लें. उम्मीद है ये वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. तो आज के इस वीडियो सेशन का हमारा 8वां वर्ड क्या है? फ्लूक. व्हाट आई सेड, मैंने क्या कहा? आज के इस वीडियो सेशन का हमारा 8वां वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? फ्लूक, जिसका क्या मतलब होता है? अकस्मात सौभाग्य. मैंने क्या कहा? फ्लूक का क्या मतलब होता है? अकस्मात सौभाग्य. वेल, this word has come in the examination SSC, DO and even in LDC in 2014, right? So obviously this word is really very important. इसका इंग्लिश क्या मतलब होता है? इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है? एक्सीडेंटल गुड फॉर्च्यून. यानी ऐसी कोई आप किस्मत कह सकते हैं या कुछ भी आपके साथ ऐसा कुछ अच्छा हो गया या कुछ अच्छा होने की उम्मीद कर लिए या फिर अच्छा हो गया, एक्सीडेंटल, आकस्मिक हो गया. जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि किसी की मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु, यानी कि ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे तो वो आकस्मिक मृत्यु हो गया, यानी कि वो अच्छा नहीं हुआ, सौभाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य हो गया, राइट. लेकिन ऐसा चीज़ जो फॉर्च्यून अच्छा रहा, गुड फॉर्च्यून एक्सीडेंटली आया, राइट, एक्सीडेंटली गुड फॉर्च्यून आया, तो ऐसे को कहते हैं हम लोग फ्लूक. ऐसे बहुत सारे अपनी ज़िंदगी में या लाइफ में हम लोग कभी ना कभी तो ज़रूर हर किसी के साथ हुआ होगा, या फिर अगर नहीं हुआ है तो शायद हो जाएगा, कि कुछ ऐसे चीज़ हैं जिस पर हम उम्मीद नहीं करते हैं और वो एक्सीडेंटली हमारे साथ हो जाता है, सौभाग्य से आकस्मिक तरीके से हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्लूक. अगर इसे आप एग्जाम्पल्स में समझें, अगर इसे हम अगर एग्जाम्पल्स में समझेंगे
तो जो लोग एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, एमटीएस या फिर सीजीएल की, नहीं बहुत कई सारे एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, अगर उन किसी की तैयारी कर रहे होंगे तो अगर वो मान के चलिए कि वो अच्छे से एग्जामिनेशंस लिखे हैं, जो भी अटेंडेंट, जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जामिनेशन अटेंड किया वो अच्छा लिखे हों पिछले एग्जामिनेशंस को या फिर कोई एग्जामिनेशंस देंगे, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि मुझे इतना ही मार्क्स आएगा जितना भी वो उन्होंने सोचा है, मे बी 170 जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं जितने भी आने की सोचा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अगर आ जाए, आपने गलत, आपने जो भी ठीक किया था आपने सही, लेकिन आपको लग रहा था वो गलत ठीक किया, तो ऐसे में अगर अच्छा रिजल्ट आ गया तो आप इसे कह सकते हैं दैट इट वाज फ्लूक, ये जो रहा मेरे साथ ये अकस्मात सौभाग्य रहा कि मैं इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया और मैं फलां पोजीशंस में मैं पहुंच गया, राइट। तो इसे कह सकते हैं दैट achieving this position या फिर this designation या फिर this post, चलिए आप इसे पोजीशन भी कह सकते हैं, is a fluke। इस पोजीशन को पाना, इस पोजीशन को हासिल करना या पाना, या इस डेजिग्नेशंस को पाना या हासिल करना, या पोस्ट को हासिल करना या पाना, ये क्या है, एक फ्लूक रहा मेरे लिए। ये क्या रहा है, एक अकस्मात सौभाग्य रहा या आकस्मिक सौभाग्य वाली बात रह गई। इसे कह सकते हैं एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये सॉरी आपको ये वर्ड अच्छे से क्लियर करने में मैं सामर्थ्य या फिर सक्षम हो गया होऊंगा। जहाँ भी अगर किसी तरह का कोई डाउट्स या फिर किसी तरह को कोई परेशानी आ रही हो तब कमेंट सेक्शन पर ज़रूर आप कमेंट करें। उम्मीद करेंगे कि अगले वीडियो में या फिर किसी न किसी दिन लाइव में आकर के मैं आपके इस डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो आज का ये वर्ड रहा फ्लूक। The ninth word here we have in today's video session is what? Desecration. So what I said, the ninth word here we have in today's video session is what? Desecration. So what is its Hindi meaning? इसका हिंदी मतलब क्या होता है? अपवित्र करना। Well, this word has come in the examination SSC, ESIC in 2012 and 13 as well. And even though that this word has come in the examination LIC HFL in 2013, right? तो इसका क्या मतलब होता है? अपवित्र करना। Well, if you want to understand this word in English, it is what act of violating the sanctity of the church. यानी चर्च के पवित्रता का उल्लंघन करने का काम ही क्या होता है? Desecration. And this is really very, this is the worst job. I think it should not be done. ये होना नहीं चाहिए. Well, desecration का क्या मतलब होता है? अपवित्र करना. Well, this word has come in the examination. I think that you can see on the board that what exactly it's written. क्या लिखा हुआ है? Well, this word has come in the examination 2012 में, ये 13 में आया SSC ESIC में, right? यानी चर्च की पवित्रता का उल्लंघन करने का काम करना ही कहलाता है desecration. So I think we should not do desecration, or desecration is prohibited or forbidden. यानी ये जो चर्च की पवित्रता का उल्लंघन करना मना है, या फिर इट इज़ अ पनिशेबल जॉब, ये क्या है? दंडनीय, ये काम जो है ये एक तरह से एक अपराध है, ऐसा करना नहीं चाहिए, राइट? सो दिस इज द नाइन्थ वर्ड, दैट इज व्हाट? Desecration. उम्मीद है कि आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। The last word of today's video session is what? Ambidextrous. What I said, the last word here we have in today's video session is what?
ambidextrous. So what is its Hindi meaning? Ubhay hast kushal. This is the Hindi meaning of ambidextrous. Somewhat that it is difficult to pronounce, but इसको अगर आप इंग्लिश में समझना चाहें, so what exactly is this? ये है क्या ambidextrous? इसका मतलब क्या होता है? Able to use the right hand and the left hand equally well. यानी दाएं हाथ और बाएं हाथ का बराबर तरीके से सही मानों पे समान इसका सही उपयोग एक साथ करना, यही कहलाता है ambidextrous. यानी ambidextrous का क्या मतलब होता है? Able to use the right hand, मतलब सक्षम होना राइट हैंड का इस्तेमाल करने का, एंड इवन द लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड का भी इक्वली वेल, बराबर बराबर है. तो ऐसा बड़ा मुश्किल होता है, बहुत लोग ऐसे नहीं कर पाते, बट देयर आर नंबर ऑफ पीपल दैट हु आर ambidextrous, who use their right hands as well as left hands equally well. They do their work with the both, from both the hands. I mean left hand as well as right hand. Well, this word has come in the examination SSC, LDC in 2010 and even in CGL in 2012. So hopefully that this word is really very very important. और इसे है क्या ये word? ambidextrous, जिसका मतलब क्या होता है? Able to use the right hand and the left hand equally well. दोनों हाथ का समान, एक समान इस्तेमाल करना, यूज़ करने का आपका सक्षम होना, दोनों हाथ का आप इस्तेमाल कर सके, राइट हैंड का भी, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड. वेल, आई एम नॉट ambidextrous. मैं तो ambidextrous नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करता हूँ. होपफुली दैट यू कैन सी दैट आई राइट विद द लेफ्ट हैंड, सो आई एम नॉट ambidextrous. So there are many people who are, there are many people, there are so many people that who are ambidextrous. कई सारे लोग हैं जो ambidextrous हैं. आप examples में लिख सकते हैं that I am not ambidextrous, he is an ambidextrous, or somebody, he or you or whoever. तो आप इस तरह से समझ सकते हैं. देखिए, ये जितने भी वर्ड्स आज हम लोगों ने सीखा, सबसे पहला हम लोगों ने क्या सीखा? ransom, फिर amphibians, फिर disarranged, prediction, फिर हम लोगों ने क्या सीखा? embezzlement, introspection, anarchy, fluke, desecration और ambidextrous. ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. पैसेज में या कहीं भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, पैसेज में ही अगर ये वर्ड दे दिया गया हो और उसे क्वेश्चंस, जाहिर सी बात है क्वेश्चंस दे दिया गया है, तो आप उससे ढूंढ पाएंगे आसानी से अगर आपको इसका मतलब पता होगा. तो मैंने आज की इस वीडियो सेशन में 10 इंपॉर्टेंट वर्ड सिखाने की कोशिश किया है. मैंने उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का क्लास पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया हो, इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट एज मच एज पॉसिबल. और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर सोचें और कर भी दें. तो मिलते हैं एक नए वीडियो सेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ, नए जोश और नई इंथुसियाज्म के साथ. तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर.